عزیز ہے، میں بہت اچھا گاتا ہوں، جب میں بہت زیادہ کلام کو جانتا ہوں تو ہم گناہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں۔ لوسیفر فرشتے نے کون سا گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو بہت بہتر ہوں، آمین۔ اور جب اس نے اپنی بہتری کو دیکھا اور خدا کی شفقت کو نہیں دیکھا تو وہ سارے جلال سے کیا ہوا؟ محروم ہوا اور آسمان سے ہی نیچے پھینک دیا گیا۔ اور جب ہم بھی اس چیز پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس اچھی آواز ہے، میرے پاس تندرستی ہے، چنگیائی ہے، میں تو دوسروں سے بہت بہتر ہوں، تو پھر ہم کسی کام سے ہم نے عزیز بننا ہے۔ ہمارا خدا یسوع مسیح کیا بنا؟ عزیز اور حلیم اور فروتن بنا۔ ہم نے بھی عزیز اور حلیم اور فروتن بننا ہے تاکہ ہم خداوند کو کیا ہے؟ پسند ہے، آمین۔ ہمارا اپنا بیٹھنا خداوند کی مرضی کے مطابق ہو، نہ کہ ہمارا اپنا چال چلنا ہو کہ جب ہمارا دل کیا ہم جاگے، اور جب ہمارا دل کیا ہم سو گئے، اور جب ہمارا دل کیا ہم نے دعا کر لی، اور جب ہمارا دل نہیں کہتا تو ہم دعا نہیں کرتے، آمین۔ ہماری سنڈے والے دن عبادت نہیں ہوتی، لیکن باجی نے کہا کہ مجھے سنڈے والے دن ہی عبادت کروانی ہے، تو باجی سے میں نے کہا کہ ہاں ہم کروا دیں گے، لیکن باجی نہ مجھ سے ملی نہ میں باجی سے ملی۔ پورا ہفتہ گزر گیا۔ آج صبح جب باجی گئی تو باجی نے مجھے کہا کہ آپ نے تو ٹائم دیا تو میں نے باجی کو بتا دیا۔ میں نے کہا میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، کل بھی ہم سارا دن ساتھ، پہلے ایک سیمینار تھا، اس کے بعد بھائی کے گھر کی شکر گزاری تھی، انہوں نے گھر تعمیر کیا تو وہاں پر تھے، تقریباً ہم شام 6 بجے وہاں سے نکلے ہیں، پھر ہم اپنے اپنے گھروں میں چلیں گے، اور کسی عبادت کا کوئی اعلان میں نے نہیں کیا۔ اور بہت سی زندگیاں آپ سب جانتے ہیں کہ سنڈے والا دن جو ہوتا ہے اتوار کا ایک چھٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو کام ہوتے ہیں، شادی بیاہ کی سیزن چل رہی ہے، آمین۔ تو اسی لیے بہت زیادہ زندگیاں جو ہے کم ہے، لیکن میرا اور آپ کا زندہ خدا اپنے وعدے کے مطابق اور اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ اس جگہ پر موجود ہے، اور روح القدس اس جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ بے شک ہم تھوڑے ہیں، لیکن خدا کا جلال جو ہے وہ کثرت سے جگہ پر کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے جس مقصد کے لیے اپنے گھر کے دروازے خداوند کے لیے کھولے ہیں، میرا ایمان ہے کہ خداوند نے وہ برکت دے دی، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں تو خداوند کا سامان جو اچھا خزانہ ہماری زندگیوں پر کھل جاتا ہے۔ اور دیکھیں گے خداوند کی زندگی بخش کلام مقدس میں سے زبور نمبر 37 اور اس کی 4 نمبر آیت سے، جب سب نکال لیں تو آمین کہیں گی۔ زبور نمبر 37 کی 4 نمبر آیت سے لے کر 5 آیت۔ میرے عزیزو، اس کلام مقدس میں یوں مرکون ہے 4 نمبر آیت کی مقدس میں، خدا میں مسرور ہے، آمین۔ اب کرنا کیا ہے کہ برکت کوئی بھی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے اولاد مسرور لینی ہے، تو میں نے خدا میں کیا جانا ہے؟ مسرور ہو جانا۔ میرے عزیزو، ہم حنا کو جانتے ہیں، کتنے لوگ حنا کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں۔ کیا وہ پہلے دعا نہیں کرتی تھی؟ لیکن ہر چیز کا کیا ہے؟ وقت ہے، اور وقت پر جب ہم خداوند کے حضور میں جھکے رہتے ہیں، ہم اکثر اوقات گیت گاتے ہیں، وہ دیوے یا نہ دیوے وہ دی رضا سے رہنا ہے، لیکن جب یہ بات آتی ہے تو ہم رضا اس کی چھوڑ دیتے اور اپنی مرضی کرنا اور شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو آیت مقدس ہمارے پاس ہے، خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، آمین۔ حنا میرے خیال سے اس سے پہلے خداوند کے حضور میں جاتی ہوگی، شکر گزاریاں گزرانتی ہوگی، دعا بھی کرتی ہوگی، جب اس کی جو دوسری بیوی اس پر کڑکڑاتی بڑبڑاتی ہے تو وہ روتی بھی ہوگی، زار زار روتی ہوگی، کیا خداوند نے تب اس کا رونا نہیں سنا؟ آمین۔ لیکن جیسے وہ ہیکل میں جا کر دعا کر رہی ہے، جھک گئی ہے اور خداوند سے اپنے دکھ کو، اپنی کمی کو شیئر کرنے لگی ہے، تو خداوند نے اس کی کمی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، اور اسے ایسا بیٹا دیا جو نبی ٹھہرا۔ کیا بات ہے؟ آمین۔ اور جب وہ نبی خداوند نے اپنی بیٹی کو دیا تو اس کے بعد بھی خداوند نے اسے لا دی، آمین۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر جو کلام میں کہتا ہے وہ فرماتا ہے کہ خداوند نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں مسرور رہنا، کلام کو پڑھنا، دعا کرتے رہنا اور روزے رکھتے رہنا۔ میری بھابھی کو بھائی بڑا ہے میرا، ان کے 8 سال اولاد نہ ہو، لوگوں نے کہا دعائیں دارو لے لیں، ہم نے وہ ڈاکٹری علاج تو کرواتے رہے، پھر وہ فقیروں کے پاس چلے جانا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کے پاس نہیں جانا، کیونکہ خدا جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ اپنی ہی جناب پاک سے میں اولاد عطا کرے گا۔ اور خدا نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا، اور وہ بیٹا جو ہے بہت بڑا پرستار
और खुदावंद उसे अपने जलाल कमाल के लिए इस्तेमाल करता है। कल शाम जब हम उनके घर के अंदर इबादत कर रहे थे तो बाजी ने मैसेज दिया कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे बच्चे जो हैं तेरे घर के अंदर जैतून के पौधों की मांग हो। हम जानते हैं जैतून की कितनी कीमत, हमें उसके पत्ते भी कारआमद, उसके छिलके भी कारआमद है, उसका फूड भी कारआमद है, उसकी कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती। आमीन। और मेरे से यहाँ पर लिखा है कि तू क्या कर, वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा, पूरा करेगा। पहला काम क्या है, हमने करना है। पहला काम क्या करना है, हमने करना है। हमने क्या करना है कि खुदावन में मसरूर रहना। मसरूर रहने का मतलब है कि हमने खुदा के कलाम को पढ़ना है और उस पर अमल करना। आमीन। दुआ करना, आमीन। और रोज़े रखना, क्योंकि ज़रूरत मुझे है तो ज़ाहिर मेहनत भी मैं करूँगी। आमीन। मैंने खुदा में मसरूर रहना है तो फल भी मैं खाऊंगी। अगर आप रहेंगे तो फल आपके लिए, बरकत आपके लिए। जो जान मेहनत करेगी वो खुदा के बड़े जलाल को देखेगी। और जब हम मेहनत करते हैं और यहाँ पर लिखा है कि खुदा में क्या कर, मसरूर है, तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए दुआ करें और मैं अपने लोगों को ना खोलूँ तो ऐसा नहीं हो। मैंने हन्ना की मिसाल दी कि हन्ना ने क्या की, दुआ की, और खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया और उसे औलादे नरीना अता किया, जो क्या ठहरा, नबी ठहरा। आमीन। हमें भी दुआ करने की क्या है, ज़रूरत है। और खुदावन से ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावन तू मेरे दिल की मुरादों को जानता और पूरा करने की कुदरत रखता है। और लिखा है अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे। आमीन। हम बाज़ दफ़ा अपनी फ़िक्र करते हैं और खुदावन को टाइम नहीं देते। बाज़ दफ़ा खुदावन चाहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर छोड़ दे। आमीन। कलाम मुक़द्दस में बार बार लिखा जाता है कि किसी चीज़ की फ़िक्र ना कर, लेकिन हम जो इंसान हैं हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फ़िक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा हम अपने घर का, अपने जिस्म का, अपनी बॉडी का ख्याल करते हैं और खुदावन को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन पहला काम जो है खुदावन में मसरूर रहना है और दूसरा काम है कि अपनी राहों को खुदावन पर छोड़ देना है। तो और तू उस पर क्या कर, तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। तवक्कल करना क्या है मेरे जीजों, कि सिर्फ खुदावन को ही अपना जोरे बाजू बनाना और मानना। आमीन। किसी डॉक्टर पर, किसी हकीम पर, किसी वैद्य पर, किसी खादम पर आपने तवक्कल नहीं करना, क्योंकि खुदावन जिंदा खुदा है। वो आसमान को छोड़कर ज़मीन पर तख्तनशी हो जाता है। उसने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श लिया, ताकि जो कोई इस पर क्या करे, ईमान लाए, हलाक न हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पर। अगर हम पूरा पुराना नामा देख लें उसमें कहीं भी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। ये हमेशा की ज़िंदगी जो है खुदावन के बेटे के वसीला से है, और वो बेटा जो है वो यीशु नासरी है। आमीन। और जब बेटा हमारी ज़िंदगी में है तो फिर गवाहियाँ भी हमारी ज़िंदगी में हैं। आमीन। जब हम बेटे को अपना शख्सी नजात दहिंदा क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो खुदावन का जलाल और कमाल हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। और बेटा जिसकी ज़िंदगी में है, कलाम होता था, उसकी ज़िंदगी में क्या है, गवाही है। आमीन। जब यीशु आ गया है तो क्या होता है, फिर मौज़ा हो जाता है मेरे जीजों। और मौज़ा तब होता है जब यीशु आ जाता है। आमीन। मेरे जीजों, हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है हमारे आने से पहले जगह पर क्या है, मौजूद है। इनके दिल की मुआफ़िक, आमीन, इनकी चाह के मुताबिक यहाँ पर खुदावंद क्या है, मौजूद है। इसी तरह ज़बूर 34 में से देखेंगे 7 नंबर आयत, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खमज़न होता है, उनको बचाता है। आज़मा कर देख के खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर क्या करता है, तवक्कल करता है। खुदावंद से डरने वाले, खुदावंद से डरो ऐ उसके मुक़द्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन खुदावंद का तालिब किसी नेमत का मोहताज ना हो। आमीन। मेरे से तो पहला काम जो है यहाँ पर कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ कौन रहते हैं,
खुदावन के पाक फरिश्ते हमेशा क़यामत रहते हैं। हम सो जाते हैं लेकिन खुदा नहीं सोता। आमीन। हमेशा हम पर क्या करता है और क़यामत रहता है। कैसे? अपने फरिश्तों की वसीले। खुदा के पाक फरिश्ते हमेशा हम पर क्या रहते हैं और क़यामत रहते हैं। एक दफ़ा की बात है, मैं रात उठी और बाहर सेल में निकली तो मैं देख रही हूँ अपनी छत पर ऐसे पाक फरिश्ता खड़ा हुआ, सफ़ेद लिबास, उसके पंख नज़र आ रहे हैं। मैं अपनी गुनाहगार आंखों से देख रही हूँ और मैं वहीं पर खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देती हूँ। पाक फरिश्ते वाकई हम पर क़यामत होते हैं। और जैसे जैसे हम तजर्बा करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, खुदा में बढ़ते हैं, तो वाकई खुदा का आसमान हमें खुला नजर आता है और उसकी रहमतें भी हमें क्या आती है फिर नजर आती हैं जो बेशुमार है। आमीन। हमारे गिर्द गिर्द खुदा घूमता है कि मेरी बेटी कब मुझे वक्त देगी, कब मुझसे दुआ करेगी, कब मुझसे मांगेगी और मैं ऐसे दूंगा। और जब हम उससे देना शुरू कर देते हैं वक्त, तो वो हमें क्या करना शुरू कर देता है, बरकत देना शुरू कर देता है। रिश्ता क़यामत होगा उनको बचाता है। आमीन। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जिस पर क्या करता है, तवक्कुल करता है। यहाँ पर लिखा ज़माने के बाद बड़े सारे लोग कहते हैं खुदा को कोई नहीं आजमा सकता, लेकिन खुदा कहता है मोहब्बत के साथ मुझे आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूँ। और जैसे हम आजमाएंगे और खुदावंद को चेक करेंगे कि वाकई खुदा तो अजीब और जलाली काम करता है, मेरी ज़िंदगी में भी कर, तो फिर वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा आजमा कर देखे खुदावंद कैसा मेहरबान है। और मुबारक है वो आदमी जो उस पर क्या करता है, तवक्कुल करता है। आमीन। सबसे बढ़कर है कि हम उस जिंदा खुदा पर हमेशा तवक्कुल करें, किसी चीज़ की फिक्र हम ना करें। और यहाँ पर लिखा क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं होती। आमीन। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खुदावन से डरते। और दाऊद ने इस बड़ी दिलेरी के साथ ज़बूर 23 नंबर में कहता है, वो कहता है कि मुझे तेरी आशा और तेरी लाठी से क्या है, तसल्ली है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या करता है, दस्तरखान पानी बिछाता है और मेरा प्याला क्या होता है, लबरेज होता है। और यहाँ पर भी खुदावन कहता है कि जो उस पर तवक्कुल करता है वो क्या है, मुबारक है, उनको कुछ कमी नहीं होती। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना हो। अब नेमत क्या है? नेमत तो औलाद भी है, नेमत घर भी है, नेमत जिंदगी भी है, और तमाम नेमतों से खुदावंद हमें नवाजना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। तालिब का मतलब है कि हमें खुदावंद की तलब होनी चाहिए, हमें खुदावंद की चाह होनी चाहिए। जिसने हमें सब कुछ दिया है वो हमें औलाद क्यों ना देगा? अगर हमें उसने औलाद दी है तो वो खुराक क्यों ना देगा? अगर हम बेरोजगार हैं वो हमें रोजगार क्यों ना देगा? अगर हम बेघर हैं तो वो हमें घर क्यों ना देगा? क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है नेमतों में आ जाती हैं। और जब नेमतों में आ जाती हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का तालिब किसी नेमत का मोहताज ना होगा। हमें खुदा के तालिब बनने की, खुदावंद की मदद मांगने की और उसके ताबिया रहने की क्या है, ज़रूरत है। अगर हम उसके तालिब हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। उसके आशा, उसकी लाठी से हमें तसल्ली है कि वो हमें हर नेमत से नवाजता है, हमें 100 गुना बरकत देना चाहता है। कोई 30 लेके पीछे हट जाता है, कोई 60 पर तवक्कुल कर लेता है, चलो जी 60 की बड़ी, मेरे जो 100 का जब आप रखेंगे ख्याल तो खुदावंद आपको 1000 गुना देगा। आमीन। लेकिन जब हम थोड़ी सी बरकत लेकर कहेंगे हमारे पास बहुत बरकत है, हमारे पास बहुत बरकत है, तो फिर आप उसकी पर क्या रह जाएंगे, टिके रह जाएंगे। आगे और ज़्यादा मुझे और चाहिए, मुझे खुदावंद तेरी बरकत और चाहिए, मुझे तेरा दीदार चाहिए, मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ, मैं तेरे कलाम का भूखा और प्यासा। आमीन। तब खुदावंद का आसमान जो अच्छा खजाना है हम पर क्या रहेगा, हमेशा खुला रहेगा। क्योंकि यहाँ पर खुदावंद ने वादा कर दिया कि खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। और जब हम खुदा के तालिब हैं और हम पर खुदावंद का आसमान हमेशा खुला रहेगा। आमीन। मेरे जिज्जो हम जो भी चाहते हैं, बाज़ दफ़ा बेटी और माएँ देती कि मैंने इरादा किया और मेरे लिए हो गया। हाँ,
ऐसा होता है। मैं भी काश सोचती हूँ, मेरे सोचने से ज़्यादा खुदा मुझे अता करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैं खुदा को सारा कुछ दे चुकी हूँ। मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मुझे पता है कि मेरा ज़िंदा खुदा हमेशा मुझ पर क्या है, क़यामतन है। वो मेरी तमाम तर ज़रूरियात को जानता है। और मेरा और आप सबका ईमान है कि आज इस ख़ानदान ने भी जो शुक्रगुज़ारी ज़िंदा खुदावंद के लिए दी है, उसी के मुताबिक खुदावंद ने बरकत दी है। और जल्द खुदावंद अपने बड़े जलाल को इस ग्रांडेरे ख़ानदान में ज़ाहिर करने वाला है। जब ज़ाहिर होगा तो तमाम जलाल जो है वो मेरे और आपके ज़िंदा खुदा को, आमीन। और ज़िंदा खुदा जो अपने वादे के मुताबिक हमें शेर और खुदा करता है, उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। आमीन, हालेलुया। वो ज़िंदा खुदा है, वो हर वक्त हमारी सुनता है, हर वक्त हमारे दीदार का हमारा मुंतज़िर रहता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने अपनी हथेली पर हम सबों की क्या कर रखी है, सूरतें खोद रखी। हमेशा ऐसे देखता रहता है, क्या बेटी सदर क्या मांग रही है, अब उसने क्या लेना है, वो मुझसे मांगे और मैं उसे दूंगा। आमीन। वो चाहता है कि आप उससे मांगिए और वो आपको दे। आमीन। जब आप अपने घर के अंदर बैठकर दुआ करते हैं तो कोई आपको नहीं देखता, वो दुआएं आपकी और खुदा की क्या है, पोशीदा दुआएं। आमीन। और खुदावंद का कलाम बार बार हमें बताता है कि खुदा जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा, वो तेरी दुआओं को सुनेगा। क्योंकि जो दुआएं पोशीदगी में की जाती हैं वो खुदावंद को और आपको बताती हैं कि मेरी और खुदा की क्या बात हुई। मैंने खुदावंद के साथ कौन सी बात का अहद किया है कि खुदा मैं तुझे कितना वक्त दूंगी, खुदा मैं कैसे तेरे हुज़ूर में झुकूंगी, खुदा मैं तुझे कैसे याद करूंगी। क्योंकि ये क्या है, पोशीदा वादे हैं। ये खुदावंद आपके वादे किसी को नहीं बताएगा, बल्कि हमेशा आपका राज़दार बना रहे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदगी व कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत।